عزیر الطاف کھرانا BS ان ماس کمیونیکیشن صحافت سے وابستہ ہیں اور ان کے کالم اور افسانے کافی مشہور ہیں۔ ان کی ایک کتاب راج نگر جو ایک افسانوی مجموعہ ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب سے ہم ان کا ٹائٹل افسانہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پاکستان ادبی فورم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عزیر الطاف کا افسانہ راج نگر پیش کر رہے ہیں جو ان کی کتاب راج نگر کا ٹائٹل افسانہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں عزیر الطاف کا افسانہ راج نگر۔ ان لوگوں کو راج نگر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ لوگ راج نگر بستی سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ایک نئی بستی بسا لی گئی۔ راج نگر سے عورتیں ہر روز کالے برقعے میں اپنے اڈے پر پہنچتیں اور رات گئے تک وہاں رہتیں۔ طرح طرح کے لوگ ان کے اڈے پر سارا دن آتے رہتے۔ اڈے کو راج نگر سے باہر نکال دیے جانے پر چند نوجوانوں میں غصہ تھا، کیونکہ اب انہیں روز بستی سے باہر اڈے پر جانا پڑتا، جس سے ان کا وقت اور پیسہ برباد ہوتا۔ اڈے کی مالکن نصرت کو اب دوبارہ کام شروع کرنا تھا، مگر اسے دقت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ لوگ ادھر خود چلے آتے تھے۔ ایک لمبا سا بانس زمین میں گاڑ دیا گیا، جس کے اوپر ایک چھوٹا سا کیل لگا دیا گیا۔ کیل کے ساتھ رسی سے ایک زنانہ جوتی لٹکا دی گئی۔ بس یہی نصرت کے نئے اڈے کی نشانی تھی۔ شروع میں گاہکوں کی تعداد بہت کم رہی، مگر آہستہ آہستہ لوگوں کی آبادی اڈے کے قریب بڑھنے لگی۔ فروٹ کی ریڑھی، شکرکندی کی ریڑھی، سموسے پکوڑوں والے اور مٹھائی والے یہاں روز چلے آتے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے نصرت کے اڈے کے قریب اپنے ڈیرے جما لیے۔ لوگ راج نگر اور دور دراز سے نصرت کے اڈے پر پہنچتے، وہ رات گئے تک وہاں رہتے۔ شام ہوتے ہی اڈے کی رونقیں بحال ہو جاتی۔ اڈے کے آس پاس پھولوں والوں کی دکانیں اور طبلے والوں کے تھڑے بن گئے تھے۔ پان والی 1-2 دکانیں بھی وہاں بنا دی گئیں۔ مغرب کے بعد چوباروں کی لائٹیں جلا دی جاتی اور لوگوں کا رش بڑھ جاتا۔ سردیوں میں نصرت کے اڈے کا کام مزید تیز ہو جاتا۔ لوگ وہاں آتے، گانے پر رقص دیکھتے، اپنی خواہشات پوری کرتے اور چلے جاتے۔ اب وہاں لوگوں کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آبادی راج نگر کو چھونے لگی۔ نصرت کے اڈے پر پہنچنے والی عورتیں زیادہ تر طلاق یافتہ تھیں، جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس پیشے سے منسلک ہوئی تھیں۔ ایک وقت تھا جب راج نگر میں گندم کی فصل ارد گرد کے علاقوں کی فصل سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ راج نگر میں ایک مسجد اور ایک مندر تھا، جو ہر وقت اپنے اپنے عقائد کے ماننے والوں سے بھرا رہتا تھا۔ وہاں چند برس پہلے تک کوئی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ لوگ خوش تھے اور اپنے عقیدوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے منسلک تھے۔ وہاں ایک اسکول بھی تھا جو بچوں سے بھرا رہتا تھا، اگرچہ اس میں صرف ایک استاد تھا، مگر بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ آپس میں ملنسار تھے اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ راج نگر میں ایک چھوٹی سی ندی تھی جس کا پانی میٹھا اور صاف تھا۔ لوگ ندی کے پانی سے نہاتے اور جانوروں کو پلاتے۔ پورے راج نگر کے ارد گرد سفیدے کے لمبے لمبے درخت لگے تھے اور پورا راج نگر ایک چھوٹا سا خوبصورت جزیرہ لگتا تھا۔ ساتھ والے گاؤں اس چھوٹی سی بستی کی دلکشی اور خوبصورتی کی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر جب سے نصرت اس شہر میں داخل ہوئی تھی، تب سے راج نگر کی حالت تیزی سے بدلنے لگی تھی۔ وہاں طلاق کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور گندم کی فصل بھی کم ہونے لگی۔ راج نگر میں میٹھے پانی کی ندی بھی آہستہ آہستہ سوکھنے لگی اور راج نگر کو تو جیسے نظر لگنے لگی۔ اب نہ کوئی مسجد جاتا اور نہ کوئی مندر کا رخ کرتا۔ باقی ہر چیز ماند پڑ گئی، سوائے ان سفیدے کے لمبے درختوں کے جو پورے راج نگر کے ارد گرد لگے تھے۔ لوگوں میں نفرت ہونے لگی۔
और घरों में बात बात पर तसादम होने लगा। राजनगर का चौधरी इस सारी हालत पर बहुत परेशान था, क्योंकि जब से नुसरत राजनगर में आई थी वहां की सूरत यकसर बदल गई। सो फैसला हुआ कि अड्डे को राजनगर से बाहर निकाल दिया जाए, और फिर अड्डा बस्ती से 1 किलोमीटर बाहर मुंतकिल हो गया। मगर थोड़े अरसे बाद राजनगर खुद ही अड्डे की तरफ मुंतकिल हो गया और नुसरत फिर बस्ती में दाखिल हो गई। फिर एक दिन चौधरी साहब नुसरत की बस्ती में बढ़ती हुई मुदाखलत से तंग आकर उसके अड्डे पर अपने चंद साथियों के हमरा रवाना हुए। नुसरत के कारोबार को तवालत देने वाले चंद लोगों ने चौधरी को अड्डे पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया और आने की वजह दरियाफ्त करने लगे। नुसरत का दस्ते रास्त नसीर बलोच भी उन लोगों में शामिल था। नसीर बलोच ने नुसरत की हर अच्छे बुरे वक्त में हर तरह से मुआवनत की थी। मामला अड्डे को किसी जगह मुंतकिल करने का हो या गाहकों को अड्डे की तरफ मुतवज्जो करने का, नसीर बलोच ने हर तरह से नुसरत की मदद की। जब कभी साथ वाले गांव के बदमाश अड्डे पर आते और रुपए दिए बगैर रवाना हो जाते तो नसीर उनके पीछे जाकर रुपयों की रिकवरी का काम भी सर अंजाम देता था। नसीर बलोच ने चौधरी से आने की वजह दरियाफ्त करते हुए कहा, जी चौधरी साहब, खैर तो है, आज आप खुद चले आए। लगता है गली के रौनकें देखने आए हैं। चौधरी माथे पर बल चढ़ाते हुए बोला, मुझे नुसरत से मिलना है। नसीर बोला, तो मुझे बताते, मैं खुद डेरे पर चढ़ा आता। चौधरी अपनी मूंछ को बल देते हुए बोला, नहीं, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। बलोच ने कहा, चौधरी जी, जो काम आपने नुसरत को बताना है बाद में भी वो मैंने ही करना है, तुसी काम दसो। चौधरी ने बलोच के कंधे पर हाथ रखा और उसे साइड पर ले जाकर बोला, तुम मुझ अकेले को अंदर ले चलो। नसीर बलोच ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तो ये बात है, डरे मत और आए मेरे साथ। फिर नसीर चौधरी को ऊपर चुबारे पर ले गया। चौबारे की तंग सीढ़ियां ऊपर चढ़ते ही दाएं हाथ पर एक दरवाजा लगा था, जिस पर कई लड़कियों की तस्वीरें आवेजा थी। अंदर दाखिल होते ही एक सुर्ख रंग का ईरानी कालीन नीचे बिछा हुआ था, जो धूल पड़ने की वजह से अपना रंग बदल रहा था। कालीन के ऊपर एक लकड़ी का नहायत खूबसूरत दीवान पड़ा था, जिस पर 2 तकिए बड़े नफीस अंदाज से लगाए गए थे। दीवान के साथ एक टेबल पड़ा था, जिस पर गुलाब के फूल और एक चांदी का पानदान मौजूद था। पान की खुशबू कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी। पास ही मौसीकी के कुछ आलात पड़े थे। कमरे की दूसरी नुक्कड़ पर एक काले रंग का झंडा बांस की पतली सी छड़ी से सिला पड़ा था। दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें आवेजा थी। सबसे बड़ी तस्वीर नुसरत की जवानी की वो तस्वीर थी जो उनके इब्तदाई अदवार में नसीर बलोच अपनी जेब में रखता था और ग्राहकों को तस्वीर दिखाने के अलग से 5 रुपए वसूल करता था। चौधरी चंद मिनट बड़े कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाता रहा और आखिर उसने अपनी नजरें नुसरत की जवानी की तस्वीर पर मरकूज कर ली। इतने में नुसरत छोटे कमरे से बड़े कमरे में दाखिल हुई और चौधरी को देखते ही तालियां बजाते हुए बोली, आदाब आदाब चौधरी साहब, आदाब। माथे पर बल खाते हुए बोली, आपने खुद क्यों तकलीफ की भला? नसीर को पैगाम भिजवा देते, मैं खुद चली आती। चौधरी बोला, नहीं, मैं चाहता था खुद जाके मिलूं तुमसे। वो बोली, तो बोलने आली जान, मैं आपकी दोबारा क्या खिदमत कर सकती हूँ? ये कहते हुए नुसरत बड़े दीवान पर बैठ गई और चौधरी साहब वहीं खड़े रहे। देखो, तुम्हें बस्ती से बाहर निकाला गया था। नुसरत चौधरी की बात को गुस्से से काटते हुए बोली, तो आप यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने आए हैं? ये कहते हुए वो दीवान से उठी और बोली, चौधरी, पुरानी बातों को भूल जा और याद रख, राजनगर मैं तेरे कहने पर आई थी, कुछ याद है तुझे? चौधरी ने कमरे में दाएं बाएं देखा और अपना रुमाल जेब से निकालकर माथे से पसीना साफ करते हुए उसे वापस जेब में डाल लिया। चौधरी ने परेशानी से कहा, हाँ पर, और चुप करके खड़ा रहा, जैसे वो किसी बादशाह की अदालत में हाजिर हो, जिधर से इसे बोलने की इजाजत भी महदूद हो। नुसरत बोली,
तुमने तो मुझे बस्ती से निकाल दिया था और फिर हाल तक न पूछा। मैं कई साल यहाँ सड़ती रही। अब जब बस्ती खुद इस नई बस्ती में आई है तो तुम्हें क्या लेना देना। चौधरी ने नुसरत को दूसरे गांव की फसल और खुशहाली के बारे में बताना चाहा तो वो बोली, यहाँ की खुशहाली मैं तो नहीं खा गई। चौधरी तेरे अपने करतूत हैं। चौधरी ने उसकी इस बात में अपनी बेइज्जती महसूस की और सर नीचा कर लिया। इसी दौरान कमरे में एक लड़की दाखिल हुई। काले जोड़े में मलबूस लड़की ने माथे पर चांदी का टीका लगाया हुआ था और होंठों पर सुर्खी इतनी तेज कि किसी की चोरी करके सारी एक ही दिन में लगा ली। पाँव में चांदी की खूबसूरत पाजेबें उछल कूद में मसरूफ थी। अंदर आते ही बोली, सलाम मालकिन। आज बहुत लाडो दीवान से उठी और लाल सुर्ख होकर बोली, चुप कर बेअदब। तुझे इतना नहीं पता चौधरी साहब आए हैं, सलाम कर। काले कपड़ों में मलबूस उस दोशीज़ा ने चौधरी को सलाम किया और बाहर चली गई। नुसरत तीसरी मर्तबा फिर दीवान से उठी और चौधरी के करीब जाकर बोली, देखो चौधरी, मुझे बताया गया है कि तुम आदमियों के साथ आए थे और बड़े दबंग अंदाज में बांस को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। तेरे आदमी तो भाग गए। वो हंसी और बोली, अब तू भी भाग जा। राजनगर किसी के बाप की जागीर नहीं। नुसरत को जब पहले राजनगर से निकाला गया था तो तब वो इलाके में इतनी मजबूत नहीं थी और चुपचाप इलाके से 1 मील बाहर चली गई थी। मगर अब के बार आधा राजनगर उसके साथ था। इस बार चौधरी चाहता भी तो कुछ न कर पाता। चौधरी वहां से बाहर निकला और अपने डेरे में आकर दबक कर बैठ गया। चंद दिनों बाद नुसरत ने पूरे राजनगर में लकड़ी के कई बांस जमीन में लगवा दिए और उनके ऊपर कील की मदद से लगी जूतियां पूरी आबोताब से चमकने लगी। कुछ अरसे बाद चौधरी तबई मौत मर गया और अब सारा निज़ाम नुसरत के हाथ चला गया। सफेदे के वो दरख्त जो नदी और फसलों के सूख जाने के बावजूद हरे भरे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी सूखने लग गए। दोस्तों, ये था उज़ैर अल्ताफ का अफसाना राजनगर। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और अदब पारे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।